تشریح دے رہے ہیں. تالیوں سے لگاتار دیکھتے گئے. موسٹ اکرم صاحب، موسٹ اکرم. ان کے ہمارا پوری کور کمیٹی ساتھ ہے. ان سب کا دل کی امیر گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارے ایڈمنسٹریٹر جناب والا کو بکی پیش کر رہے ہیں، ان کا ویلکم کیا جائے. ان کے ساتھ جناب ٹپل صاحب، مس صاحبہ، رینوڈ کنٹریکچر، ایسا مہمان خصوصی ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. مینجمنٹ کی طرف سے خوش آمدید. پوری کمیٹی پورا گروپ ساتھ آیا ہے. خوش آمدید سب کا. ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی تقریب جن کے نام پہ سجی ہوئی ہے وہ ہے حضرت سید شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، جن کا لقب نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نائب غوث اعظم ہے. ان کا نام حضرت سید اسرار الدین بغدادی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے. خیر، کسی بھی تقریر کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، اس لیے تعلیم سے بیچ میں لگا رہے ہیں وکاس صاحب دیو اور باقی تلاوت کے لیے ایک بچے کو. ابھی اس کے بعد حضرت بھگت وہ چیف ایجوکیشن آفیسر کے استعمال ان کی دستار بندی ہوگی. عمران صاحب جو یہی کی پروڈکٹ ہے JKS بیچ لگا رہے ہیں. اب اس کے بعد منوج کمار جی ذاکر صاحب ان کی دستار بندی کر رہے ہیں. تعلیم سے اب ہمارے بیچ میں فاروق احمد ٹپل صاحب رینوڈ کنسٹرکشن، آپ بیچ میں کس کو ان کی بھی دستار بندی کر رہے ہیں. وانی صاحب اب اس کے بعد انشاءاللہ شیان جی کی ناطقانی پر رافیہ میم، عتیقہ میم، ریاض میم، خالدہ میم انعام دے رہی ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں
اپنی طرف سے محترم فاروق احمد کشلو صاحب جو امام جامعہ مسجد کشتواڑ ہیں ان کا، جناب غلام محمد سرودی صاحب کا، پرہلاد بھگت جی ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسر ہیں ان کا، جناب منوج کمار جی ہمارے JNK بینک کے ہیڈ یہاں کشتواڑ سے ان کا، فاروق احمد ٹپل صاحب وہ A کلاس کانٹریکٹر ہیں ان کا، اس کے ساتھ تنویر احمد کشلو صاحب، ہمارے خورشید احمد بٹ صاحب وہ SSP صاحب، باقی جتنے بھی معزز سامعین آپ یہاں بیٹھے ہیں، پیارے بچوں اور اساتذہ کرام، میں تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا بہت قیمتی وقت، بہت مصروف ہونے کے باوجود بھی آپ نے ٹائم نکالا اور اس ادارے کے لیے آئے۔ میں آپ کی اس آنے کا اور آپ کے ٹائم نکال کر اپنا بہت بزی سکیڈیول سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہمیں دینے کا میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے آخر پہ ایک بار پھر ملاقات کروں گا اور جو میرے دل میں کوئی بات ہوگی کہنے کے لیے وہ کہوں گا۔ میں پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جلسے کی کارروائی کو فی الحال شروع کریں۔ لمے ٹپل صاحب بھارگو ٹپل صاحب 500 یہاں پہ بیٹھی ہوئی سروڑی صاحب 500 تحسین واجہ صاحب 500 سجاد کشلو صاحب 51 روپے اقرار حسین شیخ صاحب 1000 روپیہ بشیر احمد بٹ صاحب 500 روپیہ ماجد صاحب رنگریز 2000 روپیہ ذاکر حسین کشلو صاحب 1000 روپیہ تنویر احمد شیخ صاحب 2100 روپیہ عادل ابراہیم
शेख साहब 1000 रुपया, इकलाक अहमद किशोर साहब 1000 रुपया, अनीस अहमद मातू साहब 1100 रुपये, हिलाल अहमद शाह साहब 500 रुपया, मोहम्मद तौसीफ नौन साहब 2001 रुपया, मुश्ताक अहमद दानक साहब 1100 रुपया, मिस्टर अनिल कुमार शर्मा अनिल कुमार जी 1111 रुपया, मिस सफूरा सनूबर साहिबा या बानो शेख साहिबा 1000 रुपया, मोहम्मद 1000 रुपया, यासिर नजीर काजी साहब 5000 रुपया, आशिक साहब वानी 500 रुपया, वरणजीत जी 1000 रुपया, मुदस्सिर काजी साहब 2001 रुपया, अख्तर हुसैन नून साहब 5000 रुपया, शफकत साहब राठौर 1000 रुपया, शबीर अहमद तौर साहब 1000 रुपया, इम्तियाज साहब हमाल 1000 रुपया, मंजूर अहमद साहब 1000 रुपया, मंजूर अहमद साहब 1600 रुपये, इम्तियाज जी करते हैं। जनाब नजीर अहमद शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। एक चेक दिया है सूरी साहब की सदारत के सिलसिले में 31,000 का चेक है सूरी साहब की सदारत में दिया है। उसके साथ साथ मेगा एंड एल&टी कंपनी जो है, क्योंकि उनसे अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सूरी साहब की सदारत के सिलसिले में हम इंस्टीट्यूशन को इमदाद करेंगे, लेकिन आज तो दिवाली है, दिवाली के बाद जो है वो इदारे को सूरी साहब की सदारत में कुछ न कुछ दे देंगे। उसके साथ ही अब्दुल रशीद भट्ट साहब एंड सन सूरी साहब की सदारत के सिलसिले में 20,000 रुपया देते हैं। मास्टर जाकिर हुसैन हैंगर साहब और ठगराई वाले 500 रुपया, पटवारी मुबशिर साहब 500 रुपया, एक्सीएन आर्मी छात्र वीरबाज साहब 1000 रुपया जारी करते हैं। उनके साथ ही निसार अहमद दुलाल साहब फिरोज साहब की सदारत के सिलसिले में 100 रुपया, सीरो साहब की सदारत के सिलसिले में 100 रुपया, मनोज साहब की सदारत के सिलसिले में 100 रुपया, फारूक साहब की सदारत के सिलसिले में 100 रुपया और बशीर अहमद मुंशी साहब के एजाज में 100 रुपया इदारे को देते हैं। जनाब वाले सुररी साहब दो ये वही रमेश 100 रुपया, निवासी निवा पाटोशी दौड़ क्या ताली बजाओ ना, नॉन एडमिनिस्ट्रेशन आसान चीज थोड़ा है। चलो अमीर साहब साढ़े 250 रुपया। हाँ, यहाँ मुस्कान बिटिया है डॉक्टर आप निसार अहमद, आपके वालिद साहब आपको कल की तकरीब में 1000 रुपये दे रहे हैं। मुस्कान बिटिया लोग कम गया आंटोजा एप्रिसिएशन दो ना इनको, अब फ्रिक्शन लेस है। हमारे यहाँ होती थी उस वक्त मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये बात फिर आबाद हो रहा है। यहाँ आज सब आ रहे हैं जो हमसे रूठ गए थे, जो हमसे दूर हुए थे, आज हमारे सामने ही आ गए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी हमसे गलतियाँ होती हैं, ये जिंदगी का एक सिलसिला है। परफेक्ट इंसान तब होता है कि जब इंसान से गलतियाँ होती हैं, उसके बाद ये सब ठीक होता है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर टोटा किश्तवाड़ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उसने इस इंस्टीट्यूशन को चलाया है,
पिछली बार एक क्राइसिस यहाँ हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, मुझे इन लोगों ने चेयरमैन यहाँ तैनात किया, एक कमेटी बनाई कि रिफॉर्म्स किए जाएं कि साहब, क्योंकि बहुत सारा कर्जा हम पे था, हम वो कर्जा अदा नहीं कर पाए थे स्कूल के उस्तादा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने एक अच्छी रिकमेंडेशन दे दी, उसमें हमें नए प्रिंसिपल साहब मिले, शुक्र अल्लाह का कि उसने ये बागडोर अपने हाथ में मारी और आज वो क्राइसिस यहाँ नहीं है, आज स्कूल बहुत ही स्मूथली चल रहा है। मैं सबका जनाब ये रिलेटिव्स हैं, ये है, हमें यहाँ कोई शक नहीं है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, उन्होंने गलतियाँ की हैं, बहुत सारों ने गलतियाँ की हैं, और मैंने एक तजवीज़ दी थी कि अपनों में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, एक इंक्वायरी कंडक्ट किया गया, उसमें देखा जाए अगर किसी से गलती हुई है उस गलती को हम दूर कर सकते हैं। मेरा लहजा बेतासीर, मेरी बात बेतरतीब, रब्बे लम यज़ल, तुझसे मेरी इल्तिजा ये है, मेरे गूंगे हरूफों को, बेवकार लफ्ज़ों को, बेअसर से लहजे को, बेसमर सी बातों को बख्श दे या रब, मुझ पे एक नजर कर दे, मुझको बाहुनर कर दे, इनामात बर कर दे, आमीन। फख्र के साथ दिया जा रहा है और उसका नाम शीतल देवी है। सब लोगों को पता है कि उसने अपने उस डिसेबल्ड पर्सनालिटी को उभार कर पूरे दुनिया को ये बता दिया कि मैं किसी से कम नहीं। बेशक। इसी तरह से मैं यहाँ का हर बच्चा यहाँ के किसी भी अदारे में पढ़ रहा है, वो सिर्फ उस अदारे का नाम रोशन नहीं करता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरी कौम का एक नुमाइंदा बन जाता है, एक नामानिवार बन जाता है। जब इस किश्तवाड़ की धरती का, इसकी सरजमीन का बच्चा, चाहे वो सुरवी साहब की शक्ल में, चाहे सजाद साहब की शक्ल में, सुनील शर्मा की शक्ल में उस असेंबली में बोलते हैं तो किश्तवाड़ का नाम गरजता है। जब हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं तो हमारे किश्तवाड़ का डॉक्टर किसी से कम नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड को देखें तो किसी से कम नहीं। एक फील्ड जो हमसे रही थी वो थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अब उसमें भी हमारे किश्तवाड़ का नाम सारे फहरिस्त है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये जो पैदावार जो हमारी फ्यूचर सामने बैठी है, मुझे लगता है कि ये इसमें और इजाफा कर देंगे। In the great name of Almighty Allah, the Merciful, the Beneficent, Rahman and Rahim, who gave us the power of speaking and who is a good fayakun. Honorable dignitaries, respected principals, sir, teachers, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो दाना एक सुबुल मौला कुल खत्मुल रसूल, जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही तौहा। I am Muhammad Shizan. Today, I am here to express my views on the topic, the life of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers and sisters, there was a time when the corruption was ramping across the globe, when bloodshed was widespread, when a human being was not considered a human being. There was a time when stealing, injuring, and even murdering people was not considered evil at all. When women were considered a burden on society, when girls were buried as soon as they were born. The world was shattered with ignorance, injustice, and inequality. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे,
सुनूं मैं नाम तेरा दरकनूं में, सुनूं मैं नाम तेरा दरकनूं में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे मेरा पिया दिल बेटिया हम बेटिया इस्लाम की माँ बाप की शहजादी, इस्लाम की आवाज में दीन हक की तलवरी, सूरत कोला भी है सीरत खंसा भी है, हमीयत सफिया भी है जुर्रत अस्मा भी है, तारीख के औराक में है रकम अपनी दास्ता, हम बेटिया इस्लाम की माँ बाप की शहजादी, शहजादिया शहजादिया अहले इल्म महले कलम महले अज़म महले बया, मिल्लत इस्लाम की अज़मतों के हैं निशा, थामे हुए हैं मशअले जानिबे मंजिल रवा, हम बेटिया इस्लाम की माँ बाप की शहजादी, इस्लाम की आवाज है दीन हक की तर्जुमा, हम बेटिया गहने भी है माएँ भी है, हम बहादुर बेटिया। मोहतरम साहिब सदर सुरूरी साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर भगत साहब, बैंक मैनेजर साहब, फारूक साहब, इमाम साहब, फारूक साहब व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन किराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे इमाम साहब, उस्ताद मोहतरम, मुझे सुरूरी साहब और हमारे जाकिर साहब जो है एडमिनिस्ट्रेटर अब्बास इस्लामिक किश्तवाड़ ने कुछ लफ्ज़ बोलने के लिए और महबूब साहब ने कुछ थोड़ा से अपने ख्यालात कहने के लिए कहा। एज ए जुडिशियल ऑफिसर, जजों की ये तो आई एक्सेप्ट दिस, मैं ये कबूल करता हूँ, जजों की एक प्रॉब्लम होती है, वो काम थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन सुनने में उनकी आदत होती है सिर्फ सुनने की, बोलना कम। लिहाजा अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझको दरगुजर करेंगे। जैसे मेरे बरादर असगर ने डिटेल में आपको समझा दिया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिंपली ये करना चाहता हूँ जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है स्कूल में, जो हमारे दिल में अक्सर जाती रहती है, जो हम समझ सकते हैं फाहम कहीं भी हो। हमारा हर वक्त दिल और दिमाग इस सुकून के साथ मुंसलिक होता है। जब भी कोई डिस्कशन कहीं पे भी होती है तो हम ज़रूर इस स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं। तो साथी किराम से मेरी एक गुजारिश है कि उनको कभी कभार ऐसा होता है, हमने जो सुना या कहीं से पता चला कि कभी कभार ऐसा होता है साथी किराम को उनकी तनख्वाहों की प्रॉब्लम होती है, या दूसरे भी जो रिजिस्टर स्टाफ है उनको तनख्वाहों की प्रॉब्लम होती है, उसको हमेशा दरगुजर करिए। आप अपने आप को डिवोट करिए और डेडिकेट करिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों को पढ़ाइए जितना मुमकिन हो सके, अपना पूरा वक्त जो है बच्चों को दे दीजिए, ताकि ये स्कूल जो है, बच्चे हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, ताकि ये बच्चे जो है जो यहाँ से पढ़ाई हासिल करेंगे वो कहीं अच्छे अच्छे मकाम पे पहुँच जाए। रहा सवाल बच्चों का, बच्चों से भी मेरी ये गुजारिश है कि ये आजकल के बच्चे जो है, जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं,
پریکٹیکلی جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے ایسے مسائل آ جاتے ہیں, بڑے مسئلے آ جاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ آج جیسے فاروق صاحب نے بتایا, پہلے بھی بتایا کہ بچے انوالو ہوتے ہیں ڈرگس میں, اور خاص کر ہم نیوز بھی سنتے ہیں تھرو یہ کیا بولتے ہیں اس کو, نائک صاحب کے ذریعے بھی یوٹیوب پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, یا ویسے بھی ہمیں انفارمیشن ہوتی رہتی ہے. ہمارا کشتواڑ بھی بڑا ایڈوانس ہو رہا ہے ڈرگس میں. پلیز مہربانی کر کے میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کا خاص خیال رکھیے, ان کو ڈرگس میں ملوث نہیں ہونے دیجیے. ڈرگس میں جو بچہ ملوث ہوتا ہے نہ صرف وہ اپنے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے, بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بڑی بربادی ہوتی ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی جو ان کاموں میں ملوث ہو. لہٰذا میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میرے محترم چھوٹے بھائی محبوب صاحب, ڈاکٹر صاحب, ایڈمنسٹریٹر ہوگا, میں صرف اس لیے یہاں آیا ہوں اس وقت, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے دعا مانگی جائے فی الواقع وہ پوری ہو جاتی ہے. جب میں ایڈمنسٹریٹر اوقاف تھا, میں یہاں پر پرنسپل کی تلاش میں تھا, ایک روز محبوب صاحب میرے گھر آتے ہیں, نہ جانے کس سلسلے میں آئے. ہم بیٹھے ہیں اپنے لابی میں, تو جملے میں نے محبوب صاحب سے بات کی. میں نے کہا محبوب صاحب ابھی آپ کی کتنی سروس ہے؟ کہتے میری 1 سال. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے کیوں, آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مرحوم غلام رسول صاحب ہمارا جن کی خدمات ہم مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر اس سکول کی نیا کو کوئی پار لگا سکتا ہے وہ آپ کی رہبری ہو. تو انہوں نے کہا مجھے ابھی 1 سال ہے. میں کیا 1 سال اگر ہے تو آپ بہتر آپ ریزائن کرتے. ادھر سے سوچا میں نہیں ابھی سال ہے پورا ہونے دو. بہرحال میں نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ جب یہ فارغ ہو جائیں, اور ان سے میں نے کنسنٹ پوچھی, میں کہا آپ چاہتے ہو؟ کہتا ضرور چاہوں گا, میں بغیر تنخواہ کے اس سکول کی جو آبیاری کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کی بات ہے. بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا دی, اور اس کے بعد میں نے ریزائن کیا ایز یو نو, اور میں اس عہدے سے جو دستبردار ہوا اپنی مجبوری کی وجہ سے. پھر اس کے بعد یہاں باضابطہ انٹرویو ہوا اور ایک سلیکشن پروسیس ہوا, اور اس سلیکشن پروسیس میں محبوب صاحب یہاں بطور پرنسپل ان کا تعین ہوا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے شکر کیا کہ جو ہماری دعا تھی وہ پوری ہو گئی. میں اپنی بیٹی جنہوں نے ابھی ان کی دختر نیب جو ہے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جن جذبات کا انہوں نے یہاں اظہار کیا, یہ ان بچوں کے لیے جو ہے ایک روشنی کی کرن ہے, آپ کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس عمر درازی دے, اور اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کرے. شکریہ. ونفعنا بالله وذكر الحكيم انه جواد كريم ملك بر الرحيم. صدق الله العلي العظيم. آج انجمن اسلامیہ فریدیہ انسٹیٹیوٹ کا 118واں سالانہ جلسہ جو بڑے شد و مت سے آج منایا جا رہا ہے. مجھے لگ بھگ پچھلے 50 سال کا تجربہ ہے اس سکول میں, تو آج بھی اس کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے کہ مجھے ستارے نظر آ رہے ہیں, چاند نظر آ رہا ہے, آسمان چھونے جا رہے ہیں. اس کی پہل کچھ اور ہو رہی ہے. کہیں کمزوریاں تھیں, کہیں مشکلات تھے, کہیں پریشانیاں تھیں. انشاءاللہ اللہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو چلاتا ہے, ہم کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آگے بڑھائے. آج اس ادارے میں
हमारे इस किश्तवाड़ की सरजमीन के आलिम दीन, हमारे इमाम जामे मस्जिद जनाब फारूक साहब, दरअसल मुझे अंदर की बात कहूँ, मुझे ज़बान से निकल रहा था अलहाज जनाब मौलाना फारूक साहब, मगर हज अभी बाकी है। अगर हज को जाना चाहें तो इंशाअल्लाह हम सब इनको हज पे भेजेंगे। कारण हमारा ईमान जो है ये नाइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पासपोर्ट क्यों नहीं है सरकार ने, उसके लिए भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ से गुजारिश करूंगा, मैं वक़्फ़ कौंसिल के, वक़्फ़ बोर्ड के हेड को गुजारिश करूंगा, अव्वल तो तरीका इस्लाम है, अव्वल तो तरीका दीन है, अव्वल तो तरीका कुरान है, अव्वल तो तरीका मुशावरत का है। इस बोर्ड का, इस अदारे का, इस्लामिक निज़ाम का हमेशा जो सरबराही आला होता है वो मेल होना चाहिए, ये तरीका इस्लाम। हम गुजारिश करेंगे, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मैं ईमान की बात कह दूंगा, जिसको जो कहना है वो कह दीजिए कि हाँ इसका अदारे का, रियासत जम्मू कश्मीर का अदारा इस्लामी जो है, इसके अदारे का मेल जो है वो इसका सरबराही आला होना चाहिए। लिहाजा इसके साथ यहाँ पे हमारे सीओ साहब जो एक ही बहुत ही दयानतदार ईमानदार हमारे फख्र है इस किश्तवाड़ का, प्रहलाद जी, यहाँ पे हमारे जायज साहब बैठे हैं। दरअसल मैंने पहली बार आज किसी जायज साहब की स्पीच सुनी, क्योंकि मोहब्बत है इस अदारे से, या इनके भाई हकीम साहब से, SSP जो हैं हमारे यहाँ जनाब फारूक साहब, बड़ी अच्छी बात है, तो इनने काफ़ी पैसा जमा किया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ से गुजारिश करूँगा, जब नया नया वक्त आता रहे तो नौजवानों को टाइम देना चाहिए, ऐसे चुन के नौजवानों को आगे लाना चाहिए जो इन अदारों की आबियारी करें। अब एक ही रट लगा के रही है, चलो गुलाम मोहम्मद सरूरी हर जगह आए, हर जगह सदारत करे, दूसरा तीसरा भी आए, मगर कम से कम नौजवान जो है इस अदारे की आबियारी करें। हमें मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, इन्होंने 7 लाख जमा किया। अब मैं हिसाब कर रहा था 2,48,000, 10 लाख में कमी है, वो भी पूरा करेंगे, अभी ऐलान करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जोरदार तारीफ देगा। इनके साथ साथ हमारे मनोज जी, क्या बेहतरीन तकरीर की है इन्होंने, और मैं इनको मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि इस अदारे में यहाँ तशरीफ लाए। ये 2 अदारे हैं, एक अंजुमन इस्लामिया किश्तवाड़ जो हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे है, और उसी पैटर्न पे यहाँ हमारा बाल निकेतन जो एक अदारा यहाँ पे है, उम्र दराज से चल रहा है। इन अदारों में एक बहुत बड़ी गुलदस्ता दिखाई देता है। इन अदारों में हमेशा हम जाते थे, इकट्ठा जाते थे, और आज वक्त आ गया, इन्होंने एक तारीख राइज की, हम सब मिलके इन दोनों अदारों को आगे बढ़ाएं, और इस तारीख जो किश्तवाड़ की तारीख भाईचारे की, जो किश्तवाड़ की वो तारीख जो सुनहरी लफ्जों से लिखी गई, जिस तारीख को पूरा रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान मानता था कि किश्तवाड़ का वो प्यार, किश्तवाड़ की वो मोहब्बत, किश्तवाड़ का वो भाईचारा, किश्तवाड़ का वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो कहाँ गया, किसकी नज़र लगी, किसकी नज़र लगी। अल्लाह करे, भगवान करे वो दोबारा वापस आए। हमारे पास ऐसे यहाँ पे सरबराह है जिन्होंने शुरुआत की है, हम शुक्रगुजार हैं इनके साथ, मनोज जी के साथ हमारे साहब का मुश्ताक साहब एडमिनिस्ट्रेटर, कोई कसर नहीं रखी। मुझे याद है कि इस अदारे में जितनी प्रॉब्लम थी, मुश्किलात थे, और उस वक्त ये सतून की तरह खड़े रहे। हर इंसान ने वो मायने और कहने भी मुझे याद है, जब मेरा दादा मुनव्वर रसूल ने औकाफ कायम किया था, वो पैदल चप्पल बूट निकाल
के ज़ियारत में जाते थे और कब्रिस्तान पे जाते थे, और उसके अलावा जितने भी कुंभे किश्तवाड़ के होंगे, और हमारी माओं ने, बहनों ने अपने छूटे निकाल के इस स्कूल की आबियारी की है। आज हम यहाँ तक पहुँचे इस स्कूल पर, आज यहाँ पे हम पहुँचे, हम कह रहे हैं हम आसमान छुएंगे, पर मुबारक उन लोगों को, अल्लाह गिरी के रहमत उनको करे जिसमें गुलाम नबी साहब थे, अभी इन्होंने भी हमारे साथ थे यहाँ पे की। कल मैं यहाँ उस वक्त था, जनाब हज़रत शाफी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद जनाब हज़रत शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का, तो हज़ारों लोग थे वहाँ। मैं बीच में बात भी करूँ क्योंकि वो लोगों ने बल्कि 7-8 हज़ार लोग वहाँ पे थे। रोशनी के स्कूल में वहाँ पे अपना पूरा योगदान देंगे, अपना पूरा ताउन देंगे कि बच्चे और बच्चियाँ जो है इस काबिल रहेंगे। इस अदारे में बहुत बड़े बड़े शिकार पैदा किए। जब मैं इस अदारे में पढ़ता था और मास्टर ताराचंद जी हमें पढ़ाते थे, जब मैं अदारे में पढ़ता था जनाब अब्दुल रशीद काजी साहब मुझे पढ़ाता था, और उसके बाद इतना बड़ा कमचा था, विशेष मानंद कमच माशरा, अगर किलोमीटर में भी दिखाई देता था हम भाग के जाते। आज बच्चों में अदब एहतराम होना चाहिए। मैं भी देख रहा था यहाँ पिछले 3 घंटों से, जो एहतराम मेरे बच्चों में देखा वो एहतराम मेरे बच्चों में नहीं देखा। उनको 100 नंबर, इनको 20 नंबर। आप अपने उस डिसिप्लिन को, प्रिंसिपल को ठीक करिए। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो है ज़ोके यकी पैदा तो कर जाती है। मैं भी इस्लामी स्कूल से पढ़ाई की है मैंने। यहाँ इरशाद हमारे साथ पैदा हुए एक शिकार, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे, वीसी बन गए वो। मैं गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 62 वाइस चेयरमैन था। मैं 20 साल वक्फ कौंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, मेंबर रहा। मैंने इस स्कूल से पढ़ा, ये फख्र आपको है। मैंने इस स्कूल से पढ़ा और मैंने चुनाव वैली में बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड हासिल किया असम्बली में, जो कोई नहीं हासिल कर सका। ये अदारा है, ये वो टीचर थे, ये वो उस्ताद थे, ये वो हमारे वो उलमा थे, हमारी वो रहनुमा थे जिन्होंने हमें तैयार किया। है कि आज जो इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल का 118वां सालाना जलसा यहाँ हमने मनाया, और मुझे अल्लाह तबारक ताला ने ये दूसरी बार मौका दिया। पिछली बार भी मैं इसको यहाँ पे इसका खादिम बन के यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि तब भी उसको अच्छे से मना पाएँ। वो मेरा पहला जलसा था, शायद मुझे लगता है वो इतना जलसा अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जितने भी साहिब सदूर हैं, आज हैं या कल थे, इन लोगों ने हमारी इस रौनक को दुबाला किया। हमारे इस जलसे को 4 चांद आप लोगों ने लगाए। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुसूसन मैं कहूँगा सूफी साहब को मैंने परसों कॉल किया 2 बार, मुझे लगा शायद ये खाली रहे थे, कहीं बिजी थे, तो इन्होंने मुझे बैक कॉल दी। तो मेरे कहने पे, इसरार करने पे इन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह से जितने बाकी लोग हैं, चाहे फारूक साहब हैं, CO साहब हैं, हमारे बैंक के मैनेजर हैं, या जो कल मुश्ताक साहब थे, इसके अलावा भी जितने लोग यहाँ कल सदारत में थे, उन सब लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त अपना निकाल के इस स्कूल के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना टाइम निकाला। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं ये 4 चीज़ कुछ चंद 5 मिनट में अपनी सारी बातें खत्म करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए। सबसे पहले इस इदारे की